تو اس لیے میں نے آپ کو یہی ریکمینڈ کیا ہے کہ فی الحال آپ اپنے گولڈ کے اندر رہیں اور تسلی سے رہیں، مطمئن ہو کے بیٹھیں، ڈنڈا ٹوک کے بیٹھیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اور سلور کی اکامولیشن، سلور ابھی فن مار کے بیٹھا ہے میری جان، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، دونوں کانوں کا استعمال اچھے سے آپ کر رہے ہیں کہ جتنی بڑی کموڈٹی ہے اس حساب سے اس کے اندر پوٹینشل گینز اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں مینپولیشن جہاں پہ ہوتی ہے، جہاں پہ چانسز ہیں مینپولیشن کی، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ گولڈ اس ٹائم پہ بڑا ڈرامیٹیکلی پرفارم کر سکتا ہے۔ اس کے فنڈامنٹل جو ہیں وہ اس ٹائم پہ جو لوکل سطح کے اوپر بنی ہوئی ہے پوزیشن یہ والی، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے آپ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل دیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گولڈ اس ٹائم پہ بہت مہنگا ہے، اس کو نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو ریٹریس کے اندر اٹھائیں گے میری جان، ریٹریس پھر لب دے ہی رہنا، میں تمہیں کہہ رہے ہیں جی ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، گولڈ کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا تسلی کر لو، انٹرنیشنل مارکیٹ کل اوپن ہو جائے گی، انٹرنیشنل مارکیٹ اوپن ہو جائے گی، اگر وہ نیچے بھی آ جاتی ہے مجھے تھوڑا آپ نے یہ بتانا ہے کہ پھر پاکستان میں یہ جو ریسنٹ سپائکس لگی ہیں 6-8 ہزار کی، تو اس میں کتنا کو خاطر خواہ کمی آئی ہے؟ 1000 1200 1500 2000 کو میں سونے کو، یار بات سنو، کموڈٹی کتنی بڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، صدق اللہ العظیم۔ جی السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ خیر وفیت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ موڈ مزاج کام روٹین دوست احباب سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے، آمین۔ اچھا جی، آج انٹرنیشنل مارکیٹ تو کلوز ہے ڈیفینیٹلی، تو اس سے ریلیٹڈ تو گفتگو آج بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح سے کل ہم نے آپ کے ساتھ ایک تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا، ریسیشن اور انفلیشن، لیکن وہ ٹو دی پوائنٹ تھا، اسی مارکیٹ کے ساتھ ملتا جلتا ہوا، تو آج ہمیں وقت مل گیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈسکشن کے بغیر ہم کوئی اور ایک اچھا سا ٹاپک اٹھائیں جس کے اندر ہم آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں کچھ فیکٹرز، کچھ چیزیں۔ یہاں پہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سیدھا سیدھا اپنی ڈیورنٹ لائن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں دو لائنز چلتی ہیں، ایک یہ ہماری ایل او سی ہے جس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، یہ ہماری انڈیا والی سائڈ ہو جاتی ہے، اور اوپر یہ آزاد کشمیر تک یہ ساری، یہ ہماری ایل او سی ہے، اور ادھر سے ہماری ڈیورنٹ لائن ہے، جو افغان بارڈر ہے سارا۔ افغان بارڈر کی جو ٹریڈ ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ کا آغاز دوبارہ سے ہوا ہے، نمائندے ان کے بھی آئے ہیں، یہاں سے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور بغیر ویزا کے انہوں نے اپنا جو ہے نا ٹریڈ کا افتتاح کر دیا ہے۔ بارڈر، دونوں بارڈر کھلے پڑے ہیں جہاں جہاں سے بھی ہماری ٹریڈ ہوتی تھی، اور یہ جو کنڈیشن تھی کہ اگر ہمارے ملک کے باشندے وہاں جائیں گے تو وہ وہاں کا جو ویزا ہوتا ہے وہ اپلائی کریں گے، تو اس سے پرابلم تھا، کیونکہ مزدوروں نے بھی آنا ہے جانا ہے ڈیلی بیسس پہ، ان آؤٹ، یہ سارا وہ امیگریشن کا پروسیس، وہ ایک بہت لمبا پروسیس ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اگر ہم اس کو فرینڈلی ماحول کے اندر لے کر چلتے ہیں تو اس کو ان لوازمات سے ہٹا کے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ سیکیورٹی ایشوز ہمارے ملک میں پہلے ہیں، کافی ہیں، اور ہم نے کافی حد تک ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے ملک کی سطح کے اوپر الحمدللہ۔ تو اب یہ جو اس طرح کا سلسلہ ایک جاری ہو گیا ہے، اور افغانیوں نے ان کی جو زمین ہے نا، اس کی زمین پہ اتنی کاشتکاری نہیں ہے، وہ ایک تو کیا کرتے ہیں، ان کو قریب ترین ہمسایہ پڑتا ہے پاکستان، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم گندم بھی یہیں سے اٹھائیں، چینی بھی یہیں سے اٹھائیں، اجناس بھی یہیں سے اٹھائیں، اور اس چکر میں اس کی آڑ میں جو ڈالر ہے یا جو گولڈ ہے یا جو سلور ہے وہ بھی انہی ٹرالوں کے اندر،
ठीक है, स्मगलिंग के तौर पे यहां से सीधी सीधी निकल जाती है। जब भी इन्होंने, बड़ा पैसा है जी उन लोगों के पास, यकीन माने डॉलर्स के अंदर है, और उनकी इकोनॉमी आप के सामने, आंखों के सामने किस तरह से उठी है। और हमने जो डॉलर यहां से भर भर के भेजे हैं मुल्क में, एक डॉलर की कमी की वजह से भी एक दफ़ा प्राइस डॉलर की बढ़ी है, ठीक है, और रिसेशन और इन्फ्लेशन की वजह से वैसे भी डॉलर की प्राइस बढ़ी है। तो थोड़ा सा कुछ सुकून के लहजात थे, लम्हात थे जो हमने गुजारे हैं। अब दोबारा से ये जो ओपनिंग हो गई है, काम का आगाज हो गया है खलूस नीयत के साथ, लेकिन जिसकी नीयत में फतूर होता है ना, उन्होंने अपना वो काम लाजमी करना है। रोजाना आए दिन ये FIA के छापे लग रहे थे जी, ये लोग अपने जिस्म के साथ बांध बांध के, टांगों के साथ बांध बांध के डॉलर या गोल्ड या इस तरह की चीजें वो छुपा छुपा के उठा के लेकर जा रहे हैं, ठीक है। बसों के अंदर कभी रेड की, कभी बंदा उठा लिया। क्वेटा तक आपको मुश्किल है, क्वेटा के आगे वो अफगानी वहां तक खुद ही अप्रोच करते हैं। यहाँ से जो हमारा यूं समझ लें पंजाब से निकलना और बलूचिस्तान की हदूद के अंदर जिस तरह से हम घुसते हैं, तो बस ये वाली जो चेक पोस्ट हैं, इधर भी हालात वाक़यात आपके सामने हैं। जिनकी लाइनें सीधी हुई खड़ी हैं उनको तो प्रॉब्लम भी नहीं है इस चीज़ का, और कई चोर रास्ते हैं। कहने की बात यह है कि अगर वहाँ पे प्रॉपर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा कि भाई अगर चावल मंगवाया है तो साथ चावल ही जा रहा है, तो उसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है, ना डॉलर है, ना सिल्वर है, ना गोल्ड है। और जहाँ तक कल की मीटिंग का मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो रहीम यार खान वाली साइड पे ऑल पाकिस्तान जो फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, ये सारी इकट्ठी हुई हैं, इन्होंने मीटिंग की है। तो रिजल्ट एक छोटा सा क्लिप भी मार्केट में घूम रहा था कि जिसमें चांद साहब ने इस चीज़ का जो है ना माना है इस चीज़ को कि हम जब यहाँ से अपने मुल्क से गोल्ड को निकाल के बाहर लेकर जाते हैं तो उसके जो टैक्सेस हैं वो 70% तक कर दिए हैं, 70%। तो इसका मतलब यह हो गया कि वो कहते हैं हम हुकूमत से इसकी इस्तदा करते हैं, अपील करते हैं, और इस चीज़ की पुरजोर जो है ना, नहीं तो हम फिर एहतजाज करेंगे वो सारी चीज़ें, कि इस इजाफे को फिल फॉर वापस ले लिया जाए, ताकि ये जो प्रोसेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गोल्ड और सिल्वर के हवाले से, प्रीशियस मेटल्स के हवाले से, तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो हमें दुश्वारियां हैं, मुश्किलात हैं, वो आसान हो, ठीक है। मीटिंग का एजेंडा यही था, मेन टॉपिक यही था। यहां से अब हालात जिस तरफ भी जाते हैं, एक चीज तो वाजह है कि फिलहाल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रांग है और टाइट है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना अपने इस एजेंडे को, जिसकी वजह से इन्होंने मीटिंग रखी है, कामयाब कराने में कोई यानी कि कोई चांसेस भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल नहीं, फुल सोटा प्रोग्राम, फुल डंडा चलेगा, ठीक है। तो दूसरा रास्ता फिर जो है वो, उसको मैंने आपको पहले बताया है कि फिर मुझे डर है कि यहाँ के रास्ते जो खुले पड़े हैं, तो यहाँ से ये ट्रेड जब ये इधर चली जाती है अफगानिस्तान में, आपकी चीज़ अफगानिस्तान से फिर आगे दुबई में जाना है या फिर फर्दर आगे दुनिया पूरी पड़ी है, तो इसमें जाने का कोई इशू नहीं है। ये रास्ता यहाँ से खुल गया तो ये निकासी शुरू हो जाएगी, गोल्ड की भी, सिल्वर की भी, डॉलर की भी। और यहाँ पे हम थोड़ी सी गवर्नमेंट की देख लेते हैं। जो मीटिंग के अंदर वजीर खजाना साहब को साइड पे कर लिया गया है, ठीक है, और हमारे जो वजीर खारजा हैं उनको उठा के उस मीटिंग के अंदर बिठा दिया गया। आशीर्वाद तो है कहीं से, लेकिन ताकतवर हजरात थोड़ा सा गुस्से में हैं मियाँ साहब की इस हरकत की वजह से। बहरहाल ये वजीर आजम का इस्तेकाक है जी, उसके अंदर आप देखें ना, उसमें वाज़े लिखा हुआ है उनका जो प्रोसीजर है कि वजीर आजम कोई भी 3 अफराद अपनी काबीना में से उठा के उस मीटिंग का हिस्सा बना सकता है। तो आज तक वैसे नहीं हुआ कि वजीर ख़जाना साइड पे हो और वजीर खारजा अंदर आके बैठे। इसहाक डार साहब को डॉलर का कंट्रोल करने का बड़ा शौक है, इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो डॉलर को भी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जो ये निकासी यहाँ से शुरू हो गई है, तो इसको मैं निशानदेही अपने इसी चैनल के थ्रू आप लोगों तक बताना चाहता हूँ कि ये जो निकासी है ना, ये अनथक निकासी है, बलाएं बैठी हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई का गैप मैं दोबारा देख रहा हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि गोल्ड इस टाइम पे बहुत महंगा है, इसको नहीं उठाना चाहिए, इसको रिट्रेस के अंदर उठाएंगे, मेरी जान रिट्रेस फिर लब दे ही रहना, मैं तुम्हें कह रहा जी।
अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, गोल्ड को उठाया जा सकता है। अच्छा तसल्ली कर लो, इंटरनेशनल मार्केट कल ओपन हो जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट ओपन हो जाएगी। अगर वो नीचे भी आ जाती है, मुझे थोड़ा आपने ये बताना है कि फिर पाकिस्तान में ये जो रिसेंट स्पाइक्स लगी हैं 6-8 हज़ार की, तो इसमें कितना को खातिर खा कमी आई है? 1000, 1200, 1500, 2000 को मैं सोने को, यार बात सुनो, कमोडिटी कितनी बड़ी है, 2,30,000 रुपए की कमोडिटी है, उसमें 3000 आगे पीछे हो जाए तो 1% 1% भी नहीं बनता। 3000 3500 का मतलब 0.5% बनता है, समझ आइए। तो इतनी बड़ी कमोडिटी में से आधा परसेंट निकल जाना या आधा परसेंट चढ़ जाना, तो ये क्या बिजनेस है, ये क्या काम है, इसको क्या हम स्पाइक और क्या इसको डिप बोलेंगे? अब आप लोग कहेंगे जी जब ज्यादा होता है गोल्ड तो फिर एक पीस के पीछे देखें लाख 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 रुपया घुस जाता है, लाख लाख रुपया निकल जाता है। लाख रुपया उस टाइम घुसता है जब 10,000 बढ़ता है जी, ठीक है ना। जब 10,000 निकलता है तो फिर इसी तरह से लाख भी निकलता है। कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी कमोडिटी है उस हिसाब से इसके अंदर पोटेंशियल गेन्स उस तरह से नहीं है। हाँ, मैनिपुलेशन जहां पे होती है, जहां पे चांसेस हैं मैनिपुलेशन के, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि गोल्ड इस टाइम पे बड़ा ड्रामेटिकली परफॉर्म कर सकता है। इसके फंडामेंटल जो हैं वो इस टाइम पे जो लोकल सतह के ऊपर बनी हुई है पोजीशन ये वाली, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये मैंने आपको एक डिफरेंट एंगल दिया है। डिमांड एंड सप्लाई का गैप बनेगा, लाओ लाओ की आवाजें आएंगी, माल पूरा नहीं होगा, फिर पर्चियां लिखेंगे कि हाँ भाई आपका इतना लिख लिया है, माल कब मिलेगा? 15 दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, ये है नहीं अभी, चलो लेन देन का फर्का काट लेते हैं। फिर ये ड्रामेबाजी हमारे ज्वेलर हजरात की और लेबॉर्ट्री वालों की शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपको यही रिकमेंड किया है कि फिलहाल आप अपने गोल्ड के अंदर रहें और तसल्ली से रहें, मुतमईन होकर बैठें, डंडा ठोक के बैठें, टेंशन ही कोई नहीं है। और सिल्वर की अकामुलेशन, सिल्वर अभी फन मार के बैठा है मेरी जान, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, दोनों कानों का इस्तेमाल अच्छे से आप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इस चीज को अडॉप्ट कर रहा है उसका अपना अगर माइंडसेट है कि वो इस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए तो वो करे। मेरा यहां से, अब देखें, मौलवी का काम होता है आजान देना, जबरदस्ती गिरबान से पकड़ के वो मस्जिद में तो ले जाने से रहा। यहां से आपको एक डायरेक्शन आ रही है, एक व्यू पॉइंट है, आप तक पहुंच रहा है। आगे अगर आपने उसको इंप्लीमेंट करना है, आपको प्रॉफिट होना है या लॉस होना है, आप दोनों कंडीशंस में खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। सो सिंपल। हमारा यहां पे काम आपको हरगिज फोर्सफुली गर्दन से पकड़कर किसी एक डायरेक्शन में घुसेड़ना नहीं होता ना। आप इतने मुअद्दब और भोले हैं कि वो किसी के कहने पे भी आप ठोक देंगे। हाँ, आप एंट्री किसी के कहने के ऊपर अगर उठा भी लेते हैं, या किसी ने अगर बोल भी दिया है कि यहां से बाय ले लो, आपने बाय नहीं भी लिया, मार्केट सेल में चली गई, एवं ही किसी के गले पड़ जाना, ये हमारे लोगों का ट्रेंड है, ठीक है। ग्रुप्स में भी इसी तरह से होता है, यूट्यूब के कमेंट्स में भी इसी तरह होता है। मैंने आपको, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइस, कीप इन माइंड माई यूट्यूब फैमिली, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। जिनका मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, जब वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो फिर उनका मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूं, ठीक है जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। माई वुल्फ्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।